So here we are just looking at mechanism of hydrolysis of cyanide to carboxylic acid, यानी जो fundamental reaction है हमारा वो ये है RC triple bond NH plus H2O हमने लिखा है इसमें. So this is leading to formation of RCOOH बन जाता है यहाँ पर. कैसे बनेगा? Let us explore that quickly. हम लोग देखते हैं इस चीज को. So just to begin with, सीधा सा फंडा है electron rich, electron deficient. तो नाइट्रोजन के पास lone pair है. Lone pair of nitrogen which is electron rich is attacking on the H plus available in the medium. H plus के साथ ये जुड़ा. So as a result क्या बन जाएगा यहाँ से? So you will have this one R C triple bond N और ये H और ये plus charge RCNH बन गया. Now with this RCNH बनने से क्या होगा कि इसका जो एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वी कैन से, जो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ कार्बन पे होगा ये बढ़ जाएगा. जैसे हम लोगों ने देखा था एसिड कैटालाइज्ड में, हमने ये देखा था या ये पढ़ा था कि वहां पर इजीली जब OH प्लस बनता है तो कार्बोनिल कार्बन पर जो अटैक होता है वो फास्टर होता है. वैसे ही अब हमारे पास ये जो कार्बन है वो एक्टिवेटेड है एंड देयरफॉर दिस लोन पेयर इज अटैकिंग ऑन दिस कार्बन एंड दिस pi bond is shifted here. ये वाला ऐसे शिफ्ट हो गया एंड देयरफॉर वी कैन से जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास इससे बनने वाला होगा वो ये बनेगा R C डबल बॉन्ड NH बन गया यहाँ पर और ये OH2 प्लस बना. So when I have this OH2 plus, so we can say ये H plus गया इधर, जब H plus निकल गया, so this is leading to R C OH double bond NH. And now we can tautomerize this. यदि मैंने इसको tautomerize करा दिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा? R C double bond O NH2 ये बन गया. And when we have got this one RCONH2, तो देखते हैं कुछ दिमाग में घंटी बजी कि नहीं बजी. यहाँ पर बजनी चाहिए. यहाँ पर क्यों बजनी चाहिए? ये RCONH2 कौन सा है? एमाइड है. और जब एमाइड डालते हैं इसमें तो हमने क्या किया, इसमें से H प्लस ऐड किया. तो जैसे आपने इसमें H प्लस ऐड किया, so this is just leading to this one, like इसमें RCONH R C डबल बॉन्ड O NH3 प्लस बन गया. जब RCONH3 प्लस बन गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर कि H2O का रिएक्शन. जब इसमें OH2 का रिएक्शन कराओगे आप तो ये कौन सा है? एसिड डेरिवेटिव है. जब एसिड डेरिवेटिव है तो रिएक्शन कौन सा? ये वाला गया इधर, ये इधर, ये यहाँ पर और ये NH3 प्लस बाहर. So this would be leading to RCOOH बन जाता है यहाँ पर. And so that is how we are getting RCN से RCOH convert होता है. So this is the mechanism of RC triple bond N to RCOOH. ऐसे ये रिएक्शन होगा. And therefore we can say, यदि मैं यहाँ से एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये पूछा जाता है, what is the product of partial hydrolysis of cyanide? So partial hydrolysis of cyanide gives what? Partial hydrolysis यदि हमने किया है cyanide का, partial hydrolysis of cyanide gives what? This is giving us, gives amide. ये ध्यान रखना है बच्चों, जब partial करते हैं तो amide बनता है और जब complete करते हैं यानी complete hydrolysis, so in that case complete hydrolysis of cyanide gives carboxylic acid. Carboxylic acid बन जाता है यहाँ पर. ठीक. So that is how we are doing this particular reaction. अच्छा, यदि मैं इसमें थोड़ा सा मैं वेरिएशन डालता हूँ यहाँ पर, like this one, what I am doing is instead of RC triple bond, if I would have taken this one R C R double bond NH, अब इसको मैंने हाइड्रोलाइज करा दिया, then what would be the product? Just try to find out the product in this particular case. So when you have taken this R C R double bond NH, so this is having lone pair of electron which is electron rich center, and when this is electron rich center, so this is donating electron to electron deficient H plus, so it will be forming R C R double bond NH2 plus. Now H2O would be attacking, तो यहाँ से क्या बनेगा? OH यहाँ पे जुड़ा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, सो RCOH2 प्लस R और ये NH2. नाउ लोन पे से हमने H प्लस जोड़ दिया तो ये RCROH NH3 प्लस बन गया. जस्ट थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप पॉज करें. In this sense, what we have seen earlier was that हमने ये देखा था कि जब भी कार्बन पर दो OH होता है तो H2O हटाते हैं, एक OH और एक NH होता है तो BH2 हटा करके डबल बॉन्ड NH बनाते हैं, और यदि OH है और लीविंग ग्रुप है
तो लिविंग ग्रुप हट जाता है. So this NH3 plus is now become a living group. Therefore this would be forming double bond OH बनेगा, फिर H plus का लॉस होगा minus H plus, and so this would be forming ketone here. यहाँ से ये RCOR बन गया. So effectively this is called imine. तो इमीन की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर ये H है या R है. सो दिस इज लीडिंग टू एल्डिहाइड और कीटोन. जबकि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया था हमारे पास, वी हैव गॉट दिस वन, यानी वी कैन राइट हियर दिस इज पहले एमाइड और फिर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड फॉर्म होता है. एंड नाउ बेसिस दिस, अब एक और रिएक्शन में यहाँ पे इसी बेसिस पे लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं. सो इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, जस्ट इमेजिन कि हमने यहाँ पर ये ले रखा होता RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसे मैंने LaH ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये ले लिया. ठीक, देन व्हाट विल हैपन, हाउ द रिएक्शन विल गो, दिस इज व्हाट वी जस्ट नीड टू नो. हमें इसको आगे एक्सप्लोर करना है, तो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर दिस. सो टू बिगिन विद दिस, देखिए इसमें तो RCN के साथ LiLH4 है तो RCH2NH2 बना, RNC के साथ LaH में RNHCH3 बन जाता है, H plus H2O करेंगे तो RNH2 और HCOH बना है. देन RCHO के साथ LaH H2O, so this is RCH2OH with NaBH4 as well, this would be giving us RCH2OH ही मिलेगा. साइक्लोहेक्सेनोन है तो यहाँ पर भी दोनों से ही LaH इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से साइक्लोहेक्सेनॉल बना. Or with NaBH4 there is no reaction at all in this particular case. So why are all these happening and how are these happening? So let us explore. बच्चों एक बात बहुत ही आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पर ये लिखने का पर्पस बस एक है कि कैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड में कैसे रिएक्शंस होते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ से एक्सप्लोर कर लेंगे. और यही से हमारा फिर उसके जो लिमिटेड रिएक्शंस जो है वो काफी लिमिटेड है और यही दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं. So we are just covering all those reactions as well. So let us have a look at these बिल्कुल केयरफुली और बहुत बढ़िया से ध्यान से सुनना. Things are quite easy. जो प्रोसेस हमने पढ़ा है वही प्रोसेसेज का यूज करना है. Only thing is that कुछ लिमिटेशंस हैं. जैसे यहाँ पर एक तो ये है कि LiLH4 कैसे काम करता है और NaBH4 कैसे काम करता है, एक तो ये टास्क हो गया. दूसरा यहाँ पर NC और HCN में कैसे जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको हम लोग देखेंगे. And then we are just going to explore all these things. So let us have a look. सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन LaH और NaBH4 की बात करें. So while considering this LiAlH4 and NaBH4 दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस किस बात का है. So while looking at these two, यदि आपने LiAlH4 लिया है तो सबसे पहला तरीका तो यही होता है कि आप हमेशा उसको क्या करें, स्प्लिट करें. स्प्लिट करने का मतलब है यहाँ पर यह कि हमने स्प्लिट करना कर दिया, मतलब ये हो गया कि इसको हमने ब्रेक किया इसको ऐसे, ये Li प्लस हो जाएगा प्लस AlH4 माइनस है, AlH एक और H और ये माइनस. सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा Na प्लस एंड प्लस BH4 माइनस, ये H ये H ये H और ये H यहाँ पर और ये माइनस है. So if you look at this carefully, हम ध्यान से देखें इसमें थोड़ा सा, so what we observe, हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, एक बहुत सिंपल सी बात दिखाई दे रही है कि ये तो खैर Na प्लस है, मोर आयनिक है, यहाँ पर Li प्लस लेस आयनिक है और मोर कोवलेंट बनाएगा यहाँ पर. But the point is, what about the atom carrying negative charge? यहाँ पर ये भी एल्यूमिनियम मेटल है, यहाँ पर भी बोरोन भी, हम लोग मेटालिक की बात करते हैं, these are metals. So these are carrying negative charge. और इन दोनों में से which one is more metallic? More metallic is aluminium. So this aluminium is more metallic. This is more metallic. अब ये more metallic है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो आयनिक कैरेक्टर होगा, therefore we can say more ionic character. More ionic character. More ionic character मतलब more H minus. More H minus is there. More H minus is there का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि this is more reactive. This is highly reactive or react violently. Reacts violently.
वायलेंटली एज H माइनस, एज H माइनस। तो यहाँ पर जब भी आप मान लो यदि H माइनस है और आप इसमें H2O ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये H2 गैस बन जाएगा और ये OH माइनस बन गया। ये H2 गैस क्या होता है, जैसे हाईली, इसमें हमने ये पढ़ रखा है कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में H2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, डायएटॉमिक होमोन्यूक्लियर में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी H2 की होती है। एंड H2 इज इनफ्लेमेबल है एंड सो इट कैचेस फायर, इसलिए कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का वाटर के मीडियम में हम लोग यूज नहीं करते हैं। सो वी नीड सम अदर सॉल्वेंट, यानी पोलर सॉल्वेंट तो चाहिए लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट का उपयोग होता है। बट ऑन द अदर हैंड व्हाइल टेकिंग दिस NaBH4, so in that case we can see here, यहाँ से हम ये कह सकते हैं H minus is not that much stronger, तो H minus का जो कैरेक्टर है वो कम है and so this is not that much violent, तो ये H2O में भी यूज होता है, so can be used in H2O, can be used in H2O, उसमें हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। And so if we can use it in water, and therefore we are saying LiNH4 is more reactive and therefore it reduces all, तो करीब करीब ये सबको रिड्यूस कर देता है, जबकि NaBH4 माइल्ड है तो वो कम को रिड्यूस करेगा। and therefore broadly हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब LiNH4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि this is source of H minus, so we can say here this is source of H minus का ये source है। and now basis this, अब जरा देखते हैं यहाँ से, so when you have taken this RC triple bond N, LaH लिखा हमने, so this H minus can attack on this one, यहाँ पे अटैक होगा, ये वाला चला गया इधर, and so this is forming RC, H आ गया, डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पर N माइनस है, वाटर ऐड करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा से NH आ जाएगा, फिर से रिडक्शन कराएंगे यहाँ पर, दिस इज H2O से हमने यहाँ पे HOH लिया, ये इधर आ गया यहाँ से, दिस इज RCH, डबल बॉन्ड NH, अगेन H माइनस अटैकिंग ऑन दिस, तो ये वाला इधर गया, एंड सो दिस इज अगेन फॉर्मिंग व्हाट, RC के साथ हमने यहाँ पे H जोड़ दिया, ये वाला H जोड़ दिया, एंड वी हैव गॉट दिस NH माइनस, so that can be taking a proton from water HOH से, so this would be forming what, RCH2 NH2 बन गया। ये ऐसे बना सकते हैं, या फिर यदि मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे भी कर दें कि बाद में मान लो हमने LaH ले रखा है तो H माइनस दोबारा से यहाँ पे अटैक करा दें और ये N-2 बना ले, that can also be done, but इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है प्रोडक्ट पे। so this is how we are getting LaH का यूज करके हम लोग RCH2 NH2 बनाते हैं। अब इसमें जो सेकेंड पार्ट है, so that is with this one RNC, so this RNC is very important in this sense, RNC में एक खूबी सी बात यहाँ पर यह है कि इसका हमें स्ट्रक्चर बढ़िया से आना चाहिए, स्ट्रक्चर बढ़िया से आना चाहिए, मतलब इसका लुईस स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ईमानदारी से मैं कहूँ तो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं इसके लुईस स्ट्रक्चर में, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, सो ध्यान से हमें देखना है और इसी हिसाब से फिर हमें रिएक्शन को भी समझना है, एंड सो बिकॉज दैट वुड बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन। सो इन दिस केस वी कैन सी हियर, यहाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि जब हमने RNC लिया है इसका लुईस स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके का, RN ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक, मैं एक जनरल रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जनरल मैकेनिज्म लिखने का मतलब यहाँ पर यह है कि E प्लस लिखा और ENU लिख लिया, ENU लिखने का मतलब हो गया E प्लस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और NU इज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास वाटर हो, HOH है मान लो, तो H प्लस और OH माइनस, इस तरीके से लोग सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो इन दिस केस वेरी फर्स्ट स्टेप में क्योंकि माइनस कहाँ पर है, ये वाला C माइनस है, सो इट इज एक्सेप्टिंग E प्लस, सो व्हाट इट विल फॉर्म, इसलिए क्या करेगा, ये बना लेगा हमारे पास कुछ इस तरह का चीज बनेगा यहाँ पर, एंड सो हियर व्हाट वी आर गेटिंग इन दिस केस इज, यहाँ से हमारे पास जो बनेगा, बनने वाला चीज होगा वो ये वाला है, लाइक RN प्लस और ये ट्रिपल बॉन्ड C और ये E, ये बन गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर फिर से हमारे पास NU माइनस है, अब यहाँ से क्या होगा, जब ये C माइनस और ये E प्लस से जुड़ के ये वाला हमने बना लिया,
अब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इसी कार्बन पर होना है। बच्चों देखो इससे बहुत ही अच्छी सी बात ये है, जब ऐसे रिएक्शन करा रहे होते हो तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दोनों ही कार्बन से ही जुड़ते हैं, एंड सो दिस इज यूनिक फीचर ऑफ आइसोसाइनाइड, एंड देयरफॉर व्हाट वी गेट इज आर एन डबल बॉन्ड सी। देखो यहाँ पर ये ई भी यहीं पे है और एन यू भी यहीं पे है, ठीक, यानी आर एन डबल बॉन्ड सी ई और ये एन यू। अब इसको एक रिएक्शन को लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एंड देयरफॉर वी कैन से इफ आई टेक, यहाँ पर पहले मैं हाइड्रोलिसिस बताता हूँ आपको। यदि मैं इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा, सो व्हेन यू हैव टेकन दिस आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस और ये प्लस है, अब मैंने इसमें क्या किया H प्लस H2O की बात की है, जब आपने इसमें H प्लस ऐड किया है सो दिस माइनस इज गेटिंग अटैच्ड टू दिस वन, एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी और ये H जुड़ गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पर, जस्ट ऐड वाटर टू इट, OH2 ऐड किया, O चला गया, ये हो जाएगा यहाँ पर कार्बन के ऊपर जाएगा O, एंड देयरफॉर इट गोज टू दिस कार्बन, यहाँ पे गया, जैसे यहाँ जाएगा दिस मस्ट बी शिफ्टेड हियर, एंड सो व्हाट वी गेट इज आर एन, यहाँ से ये n बन गया हमारे पास, एंड फर्दर टू दिस इज व्हाट, दिस इज कंटेनिंग n डबल बॉन्ड C और ये OH और ये H आ गया, पहले OH2 प्लस एंड देन लॉस ऑफ H प्लस, सो RN डबल बॉन्ड CH एंड OH, एंड देन अगेन डॉटोमेराइज करा दोगे इसको, डॉटोमेराइज कराओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा डॉटोमेराइज, so in that case you will be having RNH C डबल बॉन्ड O और ये H। अब देखो ये वाला फिर से क्या बन गया एमाइड बन गया, यहाँ HCONHR है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करा दोगे एमाइड का तो यहाँ से क्या बन जाएगा RNH2 प्लस HCOOH, ये बन गया। यानी यदि आप गौर से नोटिस करें तो यहाँ H प्लस भी इसी कार्बन पे जुड़ा है और OH माइनस भी कहाँ जुड़ा है, यहीं पे जुड़ा है। तो जब भी आइसोसाइनाइड होगा तो दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी दोनों ही आइसोसाइनाइड के कार्बन से ही जुड़ेंगे, एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग प्रोडक्ट लाइक दिस वन। सो इन दिस केस जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पर तो क्या होगा RNC में LaHH2O लेंगे तो यहाँ से H माइनस यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, इसमें H माइनस में लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा यहाँ इस केस में, सो C माइनस पे ही हमारा ये अटैक होगा, एंड देन इट इज जस्ट फॉर्मिंग RNH2 CH2 बन जाता है, CH3 बन जाता है यहाँ पर। H प्लस H2O का हमने ऑलरेडी मैकेनिज्म देख रखा है, सो दैट वे इट इज डन। The next one is RCHO plus LaH। सर आपकी आवाज कट रही है सर आपकी आवाज कट रही है सर, बहुत ज्यादा सुनाई तो करते हैं यहाँ पर, so when I have taken this LaH and H2O, again fundamentally क्या है वही H माइनस ही है भाई हमारे पास, तो RCHO में यदि आप H माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, so when you have taken this RCHO and here this is LaH, so this H minus again attacking on this one, ये वाला गया इधर, and so you have this one RCO minus, ये H जुड़ गया यहाँ पर, H यहाँ पर H2O से HOH आएगा, and so it would be forming RCH2OH बन गया। Same thing applies with NaBH4 also, NaBH4 में भी ऐसे ही होता है, NaBH4 हमने लिखा, यहाँ भी H minus का ही सोर्स है, and so it is leading to the same product, identical product बन जाता है। On the other hand, यदि हमने यहाँ पर ये लिखा है, next one is cyclohexanol था, hexanone था हमारे पास, so the same thing would have happening here also when you have this cyclohexanone double bond O, and here the LaH लिया, H minus attacking on this, ये इधर गया शिफ्ट हुआ, and so you have this one, ये O minus है और ये हमारे पास H जुड़ गया, and no I'm not writing this LaAl and all that, बाकी लिखने के लिए हम लिख सकते हैं OLi वगैरह लिख सकते हैं, but that is not required in fact। So now this is just add H2O to this one, so this is forming OH यहाँ से, तो दोनों ही केस में OH और ये H यहाँ पे हमारे पास मिल गया। SBH में भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों इसमें कि SBH is mild reducing agent है, and therefore it reduces only aldehyde
कीटोन एंड एसिड हैलाइड, बाकी को ये नहीं करता है रिड्यूस, एंड देयरफॉर वी आर सेइंग हियर कि आइसोसाइनाइड में इसका रिएक्शन नहीं होगा। कुछ और केसेस है एक आध, दैट विल डिस्कशन हमारा जो होगा वो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट राइट नाउ अभी जो हमें ध्यान रखना है वो एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड में ही सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट करता है, एंड सो इट गोज लाइक दैट। तो अल्टीमेटली हमने जो यहाँ पे सीखा है वो ये ध्यान रखना है आपको, आइसोसाइनाइड का रिएक्शन जब भी आइसोसाइनाइड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दोनों ही कार्बन से ही जुड़ते हैं, इस बात का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। एंड सो अकॉर्डिंगली वी डिड ऑल दीज रिएक्शंस, हमने ऐसे इसको एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज द रिएक्शन विद दिस वन पार्ट, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से हमने ये ऐसे बना लिया। अब इससे आगे चलेंगे हम लोग, तो देखेंगे इससे पहले so let us have a look at this one. Suppose हमने क्या किया, इसमें LaH लिया है और D2O ले लिया है। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व इसको। So when I have taken this LaH and D2O, so we understood or we understand here कि यहाँ से H माइनस जो है पहले स्टेप में H माइनस अटैक करता है, यानी जो हाइड्राइड है यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसका हाइड्राइड आयन पहले अटैक करेगा। यदि मान लो यहाँ पे ड्यूटेरियम होता तो ये पहले ड्यूटेरियम अटैक करता, तो कार्बन से यहाँ से जो हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये जुड़ता है। सो H माइनस हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो जैसे ही H माइनस जुड़ा फिर यहाँ से O माइनस बना। अब O माइनस कहाँ से ले रहा है, दिस इज टेकिंग फ्रॉम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O से उसने D लिया है। यदि यहाँ पे H2O डालेंगे तो यहाँ वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और यहाँ वाला पार्ट जो है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा। सो इन द सेकंड केस LiAlD4 है, तो यहाँ से क्या होगा, ड्यूटेरियम आएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा ड्यूटेरियम, एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर ड्यूटेरियम। और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या है, H2O है, यानी यहाँ से H प्लस आ जाएगा, एंड सो वी हैव गॉट OH और ये वाला D। इन दिस केस यहाँ भी D माइनस है और यहाँ पर भी D प्लस है। सोचो बच्चों, इसमें ध्यान रखना कि ये वाला D माइनस का सोर्स है, ये D माइनस है, और यहाँ से आप क्या ले रहे हो, यहाँ से आप D प्लस ले रहे हो, दैट्स द डिफरेंस। ये D माइनस का सोर्स है और ये D प्लस का सोर्स है, एंड सो वी आर टेकिंग दिस वन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, LiAlH4 H2O लिया, ये हमने ऑलरेडी कर ही रखा, यहाँ से H माइनस आएगा और यहाँ से H प्लस आएगा। सो दिस इज सोर्स ऑफ H माइनस, दिस इज सोर्स ऑफ H प्लस, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये D प्लस, ये D प्लस है और ये H माइनस है। सिमिलरली इन दिस केस D माइनस है और यहाँ पर ये H प्लस है। सो दैट्स हाउ दिस रिएक्शन इज बीइंग कैरीड आउट।